Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Subscribe our channel if you have not, and please uh, feel free to call us on 76967 34256 for the best OET coaching. Today, we are going to discuss few things about speaking, just the general things first. We will discuss speaking thoroughly. But yes, first of all, this video would be just explaining you the general things about speaking, that what happens in exam and how the exam would go. So basically in the speaking, you will have two role plays. So in the final exam, you will get two role plays. This is the most important thing, that you will have two role plays. First of all, there would be a warm-up round. Warm-up round means this round does not have any marks, but this round particularly is about to make you comfortable. So they will ask you, okay, why do you want to go to UK? या why are you taking OET? So आप simply कहोगे, I'm taking OET just because I want to upgrade my career, because I want to upgrade my career and also my skills. Upgrade career को भी करना चाहते हैं and my skills as well. So that is why I am taking this OET test. जब भी आप कोई टेस्ट लेते हो उसको गिविंग नहीं बोलते, टेकिंग बोलते हैं. So I am updating my career as well as my skills, and that is why I am taking OET. So, okay, which country would you like to move? Again, there is no specific requirement, no specific marks. You can say UK, you can say New Zealand, you can say Australia. And then why? Because I want to explore more and also would like to explore the country as well. And I like to explore cultures and also would like to update my skills. So these are the main reasons. That is why I am going to UK. So these are the few things. Then you will get first role play. First role play, you will get 3 minutes to prepare. Then you will get 5 minutes to speak. Then you will get 5 minutes to speak, and then again there would be 3 minutes again for the second role play, and then 5 minutes to speak. Those 3 minutes, these 3 minutes which we are talking about are very crucial. So what are you supposed to do in these 3 minutes is basically you just need to write everything. Matlab in 3 minutes mein write everything on the question paper. So you are allowed to write on the question paper. There are no marks deduction for facial gestures. OET में facial gestures का कोई marks नहीं है. The only marks is of audio recording. इसीलिए जब आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो और टीचर के साथ ऑनलाइन स्पीकिंग करते हो, उसका ज्यादा फायदा है, क्योंकि टीचर लिसन्स टू व्हाट यू से, और जो आपकी टोन होती है टीचर उस पे काम कर पाता है. अगर आप सामने बैठते हो तो थोड़ा बहुत ध्यान फेशियल जेस्चर्स पे जाता है, पर जो ऑडियो रिकॉर्डिंग होनी है उसमें सिर्फ ऑडियो जाएगा आपका, कोई फेशियल जेस्चर्स नहीं जाएगा. इसीलिए दैट इज व्हाई वी नॉर्मली रिकमेंड कि जब आप टीचर को भी स्पीकिंग करते हो तो टीचर को भी चाहिए कि वो आंखें बंद करके आपकी स्पीकिंग को सुने और आपसे वैसे क्वेश्चन पूछे, और आपको अपने क्वेश्चन पेपर पे ध्यान देना चाहिए स्पीकिंग करते हुए. सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स अबाउट OET स्पीकिंग. सो दीज आर द जनरल रूल्स I would say for OET speaking, that there are two role plays. Then you first of all you will have warm up round. Why do you want to go to UK? Why do you want to go to New Zealand? So you will say I want to explore and upgrade my career and my skills. So that is why I am thinking about moving to New Zealand or UK. Then they will ask you different questions just to make you comfortable, no marks. Then they will give you first role play, 3 minutes to prepare. In 3 minutes you need to write on the question paper, like you can write especially questions, क्योंकि questions बनाने बहुत मुश्किल होते हैं. और फर्स्ट लाइन हमेशा लिखनी है, जैसे कि गुड मॉर्निंग, माय नेम इज भूपेश एंड आई एम अ चार्ज नर्स ओवर हियर, सो हाउ मे आई हेल्प यू. ये लाइन हमेशा लिखनी है. ये लाइन तब लिखते हैं जब भी आप ऐसी सेटिंग में बैठे हो जहाँ पे पेशेंट आपके पास आया है, तो आप पूछते हो हाउ मे आई हेल्प यू. लेकिन अगर पेशेंट आपके पास एडमिटेड है तो उस केस में आप हाउ मे आई हेल्प यू नहीं बोलते, आप कहते हो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज भूपेश एंड सो हाउ आर यू फीलिंग टुडे. तब जब वो पेशेंट एडमिट है आपके पास पहले से ही, तो आप कहते हो हाउ आर यू फीलिंग टुडे या हाउ आर यू फीलिंग नाउ. क्योंकि आप खुद इमेजिन करके देखो कि व्हेन यू गो टू अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल, तो आपके पास जो पहले से ही पेशेंट है आप उससे मिलते ही यही कहते हो कि आप कैसा फील कर रहे हो, आप बेटर हो. और जब कोई आपके पास डेस्क पे आता है
चाहे वो कम्युनिटी सेंटर में आए, चाहे वो हॉस्पिटल में आए, तो आप पूछते हो हाउ मे आई हेल्प यू। ठीक है, आप उसका नाम भी पूछ सकते हो, हाउ मे आई एड्रेस यू, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाउ मे आई एड्रेस यू। पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप नहीं भी पूछते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पूछते हो तो वो बताता है मिस्टर जॉन, तो इससे आपकी कन्वर्सेशन अच्छी होती है। ओके मिस्टर जॉन, सो आई वुड लाइक टू नो व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टुडे। ओके मिस्टर जॉन, आई वुड लाइक टू नो व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टुडे। आई वुड लाइक टू नो What brings you here today? ऐसे क्वेश्चंस पूछने आपको। सो प्लीज इस रिकॉर्डिंग को 3 4 5 बार सुनिएगा इफ यू वांट टू मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग। सो क्वेश्चन हमेशा लिखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टार्ट को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू विल राइट द स्टार्ट्स, आपको तो, क्योंकि कई बार पेपर में ना फर्स्ट लाइन ही सबसे ज्यादा एंजाइटी क्रिएट करती है, तो जब भी पेशेंट एडमिटेड है पहले लिख दो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज भूपेश, सो हाउ आर यू फीलिंग नाउ। फिर आपको अगर एक लाइन आप ये भी बोल सकते हो कभी कभी, आई कैन सी फ्रॉम योर केस नोट्स दैट यू आर हैविंग, समझो कि यू आर हैविंग पेन इन, या यू आर हैविंग माइग्रेन, सो डॉक्टर हैज रिकमेंडेड यू सम मेडिकेशंस, आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू। अगेन ये रोल प्ले पे डिपेंड करता है। सो ये भी एक अच्छी लाइन होती है, आई कैन सी फ्रॉम योर केस नोट्स दैट यू आर हैविंग। तो इस लाइन, ये लाइन भी आपको याद करनी है, दैट यू आर हैविंग जो भी पेशेंट को है। सो डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड यू दिस थिंग। अगेन दिस इज लाइक प्रेजेंट परफेक्ट, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड यू these medications. So that is what OET is all about. So again, repeating the things which we have done, please listen to this video 2 3 times. 2 role plays, warm up round to make you comfortable, then 3 minutes to prepare. In 3 minutes you can write these things on your question paper. Then there are no marks for the facial gestures, only audio recording. So teacher should close his or her eye while helping you with the speaking. Over the phone speaking is much better. Online speaking, that's why we encourage, because teacher directly works on your tone, because at the end of the day it's only audio recording that's gonna give you the marks. But again, OET का सबसे important चीज, इन सब, ये सब तो important है ही, सबसे important लास्ट में, I reassure you, it's very very important, I reassure you that there is nothing to worry, या कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना, इसको टास्क को खत्म करना बहुत जरूरी है, इसके पॉइंट्स हैं स्पेशल। I reassure you that there is nothing to worry, Mr. John, and you will be all good. Worry, Mr. John, and you will be all good. So please इन चीजों पे वर्क करो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। You will be fine soon, ऐसे ही बोल सकते हो, you will be all good और you will be fine soon। अगर आप कहोगे, और इसके अलावा I reassure you ऐसे ही बोल सकते हो, I reassure you that if you follow the instructions, if you follow the instructions which we have just discussed, which we have just discussed, yeah, which we have just told you, yeah, we have just discussed, you are, your condition will surely improve. कई कई बार टर्मिनल पेशेंट होता है, मतलब इट्स जस्ट लाइक कि जैसे एंड स्टेज रीनल फेलियर, तो उसमें पेशेंट ठीक ही नहीं हो सकता, तो आप वहां पे ये कह सकते हो कि आई वुड लाइक टू हाईलाइट द की पॉइंट्स अगेन। इसमें आप कंडीशन इंप्रूव तो बोल नहीं सकते, दैट दिस, जैसे डायलिसिस एंड स्टेज रीनल फेलियर है, तो डायलिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, as this is for you, as this will minimize the pain you have, pain and discomfort you have। तो ऐसी बातें आप बता सकते हो। वो ये सब आपको पेपर में दिया होगा, ये वर्ड जो मैं लिख रहा हूँ, पेन एंड डिस्कम्फर्ट, कि आपको डायलिसिस करना जरूरी है। अगर आप डायलिसिस नहीं करोगे, चाहे आप एंड स्टेज रीनल फेलियर हो, बट फिर भी आपकी लाइफ और भी ज्यादा टेरिबल हो जाएगी, यानी योर कंडीशन, अदरवाइज योर कंडीशन विल गेट वर्स। तो ये वाला टास्क दिया होगा, अदरवाइज योर कंडीशन विल गेट इवन वर्स, अदरवाइज योर कंडीशन विल गेट वर्स। तो ये जो होता है, ये टास्क भी होते हैं। तो अगेन दिस इज ऑल अबाउट स्पीकिंग, इफ आई टेल यू अबाउट जनरली। सो प्लीज लिसन टू दिस वीडियो 2 3 टाइम्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और वही कि ये जो टाइम होता है ना, हर वीडियो में आपको लगता है इसमें बहुत ज्यादा सीखने को नहीं है, एक बार काफी है।
एक बार नहीं, जब आप दूसरी बार सुनते हो तो आपको मेरी पूरी बातें समझ आएंगी। ये याद होगा, गुड मॉर्निंग माय नेम इज दिस, हाउ मे आई हेल्प यू। गुड मॉर्निंग माय नेम इज दिस, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। आई कैन सी फ्रॉम योर केस नोट्स दैट यू आर हैविंग माइग्रेन, सो डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड यू सर्टेन मेडिकेशंस फॉर दैट एंड यू नीड टू टेक दोज मेडिकेशंस। नाम पूछना अच्छी बात होती है, अगर टास्क में दिया तो जरूर पूछो हाउ मे आई एड्रेस यू, तो वो आपको नाम बताएगा। तो बीच बीच में बोलना, ऐसे नहीं कि अब लगातार ये बोलते हो मिस्टर जॉन, ऐसे नहीं, बीच बीच में। Okay, Mr. Jones, so I can well understand that you are having pain. So don't worry, we are here to help you. First of all, you need to do this. You need to do this. I hope you are understanding this, Mr. John. तब कह सकते हैं, I know, I hope you are understanding this. कि आपको ये सब कुछ समझ आ रहा है। तो बीच बीच में जब बात करते हैं तो पेशेंट से ये भी बोलते हैं कि I hope you are understanding everything. तो ये चीजें बहुत मार्क्स देती हैं, बहुत मार्क्स। ये नहीं कि आपने सारा रोल प्ले इकट्ठा बोल दिया और फिर एकदम पेशेंट से कुछ पूछा ही नहीं, पेशेंट को कुछ समझ नहीं आया। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ और मैं आपसे ये पूछूं ही ना कि आपको समझ आया, जैसे मैं आपको पता ही है, रिकॉर्डिंग जैसे ही ऑफ करूंगा आई विल आस्क यू कि आपको अभी तक सब कुछ समझ आया है। दिस इज हाउ अ प्रोफेशनल शुड बी। इट इज नॉट ओनली अबाउट नर्स डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, इट्स ऑल्सो अबाउट एनी प्रोफेशनल रिलेशनशिप। अगर मैं कुछ आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी तो ऐसे बोलता हूँ, गुड मॉर्निंग माय नेम इज भूपेश, आई एम योर ओईटी mentor. So today we will discuss about this speaking session. So first of all, I would like to tell you speaking has two role plays, this and this, this and this, and please watch this video 2-3 times. And I reassure you, if you watch this video 2-3 times, your speaking will surely improve. देखो reassurance का कितना फर्क पड़ता है। I reassure you that if you watch this video 2-3 times, your speaking will definitely improve and you will have a great chance to pass your OET exam in one shot. So फर्क पड़ता है, reassurance is very important part. यही तो होता है पेशेंट के लिए, सब कुछ ही साइकोलॉजिकल होता है। सो एट दिस टाइम व्हेन यू वुड बी विद द पेशेंट, सो इट इज मस्ट दैट यू शुड टॉक अबाउट दीज थिंग्स। ऐसी बातें बोलनी है। एंड स्पीकिंग को अगर आप बहुत तेजी से अच्छा बनाना चाहते हो तो देयर इज ओनली वन वे, दैट यू शुड टॉक इन इंग्लिश। जैसे मैं अभी एक सोच रहा हूँ एक फ्लायर बनवाने की और इंस्टीट्यूट्स में लगाने की, वो ये है कि स्पीकिंग इन इंग्लिश इज द ओनली सॉल्यूशन, that you have to talk in English. That is the only solution for improving your speaking. Please गलत बोलो, सही बोलो, जो मर्जी करो, but talk in English. It will really benefit you. And स्पीकिंग पेपर रुक नहीं सकता। अगर आपने 2 महीने की कोचिंग में लगातार इंग्लिश बोली है तो कैसे रुक सकता है, ये आपको भी पता है कि आप बोलते नहीं हो इसलिए सफर करते हो। सो प्लीज टॉक इन इंग्लिश टू मेक योर सेल्फ वेरी 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 कंफर्टेबल, ताकि स्पीकिंग में तो हमें 350 को टारगेट नहीं, हमें 450 को टारगेट करना चाहिए। अगर आप 24 घंटे इंग्लिश बोलोगे तो बाकी मॉड्यूल्स में भी बहुत कुछ सीखोगे। बिकॉज सपोज इफ यू टॉक टू मी इन इंग्लिश, आई विल आंसर यू इन इंग्लिश। इससे आपका लिसनिंग बढ़ता है, क्योंकि मैं भी तो आपको जवाब दूंगा, वो आप लिसन करोगे तो लिसनिंग भी बढ़ेगा। जब हम एक दूसरे से बातें करेंगे, मैं कोई और बात बोलूंगा, देयर वुड बी सम अदर टर्म्स विच आई विल यूज, तो आप वो सीखोगे, इससे रीडिंग भी बढ़ेगा, इससे लिसनिंग भी बढ़ेगा, इससे राइटिंग भी बढ़ेगा, ग्रामर भी बढ़ेगा। So that is what is the benefit of talking in English all the time. Means you are creating an atmosphere where you want to win 100%. Every sentence that you will talk in English will tell your subconscious mind that you want to pass. हर लाइन जो आप इंग्लिश में बोलोगे वो यही बताएगी आपको कि मुझे पास होना है। और हर लाइन जब आप हिंदी और पंजाबी में बोलते हो तो वो सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज देती है कि कोई बात नहीं, देखी जाएगी, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तो जब आप इंग्लिश बोलोगे तो आपको पता होगा देखा नहीं जाएगा, हमें करना है। सो ये मेन फर्क है अगर इंग्लिश बोलने का। एवरी सिंगल स्मॉल सेंटेंस दैट यू विल टॉक इन इंग्लिश विल मेक अ डिफरेंस। That is what preparation is all about. So I'm just going to hold on to the recording. Please listen to this recording and you will certainly start feeling better. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Thank you.